آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کر رہے ہیں جو تاریخ اور عقیدے کے بالکل سنگم پر کھڑا ہے اور اکثر بہت شدید بحث کو جنم دیتا ہے۔ یہ موضوع ہے پیغمبر اسلام کی شادیوں سے متعلق۔ جی ہمارے پاس جو مواد ہے اس میں ناقدین، سابق مسلمانوں اور غیر مسلموں کے اعتراضات بھی ہیں اور ان کے جواب میں مختلف اسلامی مکاتب فکر کی وضاحتیں بھی، اور ساتھ میں کچھ غیر جانبدار علمی تبصرے بھی شامل ہیں۔ بالکل۔ اور ہمارا مقصد یہاں کوئی حتمی فیصلہ سنانا نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ مقصد صرف یہ ہے کہ اس مواد کی بنیاد پر ان مختلف زاویوں کو سمجھا جائے جن سے ان تاریخی واقعات کو دیکھا جاتا ہے۔ یعنی یہ پرکھنا کہ ایک ہی حقیقت مختلف لوگوں کے لیے کتنے مختلف معنی رکھتی ہے۔ بالکل۔ تو چلیں اس موضوع کو ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ بات شروع کرتے ہیں سب سے بنیادی سوال سے، یعنی بیویوں کی تعداد۔ جی کہ ایک طرف عام مسلمانوں کے لیے 4 بیویوں کی حد ہے، لیکن پیغمبر اسلام کی 11 سے 13 بیویاں تھیں۔ یہ تضاد کیوں؟ اور یہی وہ پہلا نقطہ ہے جہاں سے ناقدین اپنی بات شروع کرتے ہیں۔ اچھا۔ ان کا سوال بہت سیدھا ہے، اگر یہ قانون خدا کی طرف سے ہے تو کیا یہ پیغمبر پر بھی ویسے ہی لاگو نہیں ہونا چاہیے تھا؟ وہ قرآن کی سورۃ الاحزاب کی آیت 50 کا حوالہ دیتے ہیں، جو خاص طور پر پیغمبر کو اس معاملے میں استثناء دیتی ہے۔ جی، ایک ایکسیپشن دیتی ہے۔ تو ناقدین کے نزدیک یہ ایک ایسا استثناء ہے جو ذاتی فائدے کے لیے بنایا گیا لگتا ہے۔ وہ اس میں ایک اور پہلو بھی شامل کرتے ہیں کہ یہ زیادہ تر شادیاں 50 سال کی عمر کے بعد ہوئی۔ جی تو ان کے مطابق اگر مقصد اولاد پیدا کرنا ہوتا تو یہ جوانی میں ہوتی، صحیح۔ اور اگر سیاسی تھا تو کیا اس کا پیمانہ اتنا مختلف ہونا ضروری تھا؟ یہ سوالات اٹھائے جاتے ہیں۔ بالکل۔ اب اس کے جواب میں جو اسلامی روایت ہے وہ ایک بہت دلچسپ تصور پیش کرتی ہے جسے خصائص نبی کہتے ہیں۔ یعنی نبی کی خصوصیات؟ جی، اس کا بنیادی خیال یہ ہے کہ ایک پیغمبر کی زندگی صرف ذاتی نہیں ہوتی، وہ قانون سازی کا ایک ذریعہ بھی ہوتی ہے۔ اچھا۔ اس لیے کچھ ایسے کام جو عام انسان کے لیے نہیں ہوتے وہ پیغمبر کو کرنے پڑتے ہیں تاکہ معاشرے کے لیے نئی مثالیں یا قوانین قائم ہوں۔ تو یہ دلیل دی جاتی ہے کہ یہ استثناء ذاتی فائدے کے لیے نہیں تھا، بلکہ ایک بڑی سماجی یا یوں کہیں قانونی ذمہ داری کا حصہ تھا۔ جی، یہی روایتی موقف ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ہر شادی کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد تھا، کسی قبیلے سے سیاسی اتحاد، کسی بیوہ کو سماجی تحفظ فراہم کرنا، بالکل، یا کسی پرانے سماجی رواج کو توڑنا۔ تو ان شادیوں کو ذاتی خواہشات کے بجائے پیغمبرانے مشن کا حصہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ بھی اہم ہے کہ ایک خاص آیت کے نزول کے بعد آپ نے مزید شادیاں کرنا بند کر دی تھیں۔ جی، یہ بھی ایک اہم نقطہ ہے۔ لیکن اگر کوئی غیر جانبدار مورخ اس کو دیکھے تو وہ شاید یہ کہے گا کہ کسی بھی نظام میں جب لیڈر خود کو قانون سے بالاتر قرار دیتا ہے تو اس سے وہ آفاقی اصولوں کا تصور کمزور پڑتا ہے نا؟ ہاں، یہ ایک معقول نقطہ ہے، لیکن تاریخ ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ یہ کوئی انوکھی بات نہیں تھی۔ اب بائبل کو دیکھیں، وہاں حضرت سلیمان اور حضرت داؤد جیسے انبیاء کی کثیر بیویوں کا ذکر ہے۔ تو یہ اس دور کے مذہبی اور شاہی کلچر کا ایک حصہ نظر آتا ہے۔ جی، ایسا ہی لگتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو تعداد کی بات ہوئی، لیکن اصل بحث تو کچھ مخصوص شادیوں پر ہے جہاں الزامات بہت زیادہ ذاتی اور سنگین ہو جاتے ہیں۔ اور اس میں شاید سب سے زیادہ متنازع معاملہ حضرت عائشہ کی شادی کا ہے۔ بلا شبہ یہاں بحث کا محور ان کی عمر ہے۔ روایتی سنی احادیث کے مطابق نکاح کے وقت ان کی عمر 6 سال اور رخصتی کے وقت 9 سال تھی۔ آج کی دنیا میں جب ہم یہ سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں فوراً چائلڈ میرج اور بچوں کے استحصال جیسے تصورات آتے ہیں۔ بالکل، اور ناقدین اسی جدید اخلاقی پیمانے کو استعمال کرتے ہوئے اسے ایک سنگین اخلاقی مسئلہ قرار دیتے ہیں۔ ان کا موقف یہ ہے کہ بھلے ہی یہ 7ویں صدی کے عرب کا رواج رہا ہو، ایک پیغمبر کا کام رواج کی پیروی کرنا نہیں بلکہ ایک لازوال اخلاقی مثال قائم کرنا ہوتا ہے۔ اور یہ ایک بہت طاقتور دلیل ہے، بہت زیادہ، بہت طاقتور۔ اور اس کا جواب اسلامی دنیا کے اندر سے بھی ایک جیسا نہیں آتا، جو اس معاملے کو اور بھی دلچسپ بنا دیتا ہے۔ اچھا، یعنی اس پر کوئی ایک متفقہ اسلامی موقف نہیں ہے؟ بالکل نہیں، اس پر کم از کم 3 بڑے موقف ہیں۔ پہلا ہے کلاسیکی سنی علماء کا۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اسے اس کے تاریخی تناظر میں دیکھنا چاہیے
उस दौर में ये एक आम बात थी, बुलूगत का तस्वर मुख्तलिफ था और इस वक्त किसी ने इस पर इतराज़ नहीं किया, लिहाजा आज के पैमानों से उसे परखना तारीखी बददियानती है। यानी ये तब ठीक था, लेकिन आपने कहा कि दूसरे मौक़िफ़ भी हैं। जी, दूसरा मौक़िफ़ जदीद दौर के कुछ सुन्नी मुफक्किरीन का है जो खुद उन अहादीस की तशरीह को चैलेंज करते हैं। अच्छा, वो कैसे? वो दूसरे तारीखी शवाहिद जैसे हज़रत आयशा की बड़ी बहन की उम्र या मुख्तलिफ जंगों के वाक़यात का हवाला देकर ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि रुखसती के वक्त उनकी उम्र 15 से 19 साल के दरमियान थी। ये तो बहुत बड़ा फ़र्क है, 6 या 9 साल और 15 या 19 साल। बहुत बड़ा फ़र्क है। वो कहते हैं कि रिवायात को समझने में या उनको नकल करने में कहीं गलती हुई है। तो एक ही मकतब फ़िक्र के अंदर इतना इख्तिलाफ? जी, और तीसरा मौक़िफ़ शिया उलमा का है जो सिरे से उन सुन्नी अहादीस की सनद को ही काबिल एतबार नहीं समझते जिनमें कम उम्री का जिक्र है, और वो उनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा बताते हैं। तो मामला ये है कि क्लासिकी तारीखी ज़राए कम उम्री की तरफ इशारा करते हैं, लेकिन खुद मुसलमानों के अंदर इस पर शदीद बहस मौजूद है। बिल्कुल, और आखिर में ये बहस इस बुनियादी सवाल पर आकर रुक जाती है कि इखलाकियात क्या हैं। क्या अच्छाई और बुराई वक्त और जगह के साथ बदल जाती हैं, या ये आफाकी उसूल हैं जो कभी नहीं बदलते? जी, अगर आप पहली बात मानते हैं जिसे मॉरल रिलेटिविज्म कहते हैं, तो ये शादी काबिल फहम हो जाती है। अगर दूसरी बात यानी मॉरल रियलिज्म, तो ये हमेशा एक मसला रहेगी। तो हजरत आयशा का मामला सकाफती उसूलों और उम्र के तयन से जुड़ा है, लेकिन एक और शादी ऐसी है जिस पर एतराज उम्र का नहीं बल्कि खानदानी रिश्ते और समाजी रिवायात का है। आप हजरत ज़ैनब बिन्त जहश के मामले की बात कर रही हैं? जी, जिसने इस वक्त के अरब माशरे में एक तूफान खड़ा कर दिया था। जी, ये मामला और भी ज्यादा पेचीदा है। हजरत ज़ैनब पैगंबर इस्लाम की फुप्पीज़ाद बहन थी और उनकी शादी आपके मुंह बोले बेटे ज़ैद बिन हारिसा से हुई थी। जब इन दोनों में अलैदगी हो गई तो पैगंबर इस्लाम ने हजरत ज़ैनब से खुद शादी कर ली। और उस वक्त के अरब माशरे में मुंह बोले बेटे की मुतल्लका से शादी करना हकीकी बेटे की मुतल्लका से शादी करने जैसा ही ममनू और बुरा समझा जाता था। बिल्कुल। तो नाक़िदीन का कहना है कि ये बज़ाहिर एक ज़ाती पसंद का मामला लगता है जिसे जायज़ करार देने के लिए वही का सहारा लिया गया। वो कहते हैं कि इससे ये शुबहा पैदा होता है कि इल्हाम ज़ाती ख्वाहिशात की तकमील के लिए इस्तेमाल हो सकता है। ये एक बहुत संगीन इल्ज़ाम है। बहुत संगीन, क्योंकि ये वही की नौयत पर ही सवाल उठा देता है। बिल्कुल। तो इसके जवाब में इस्लामी रिवायत क्या कहती है, वो इस वाक़े को कैसे देखती है? इस्लामी नुक्ता नज़र इसकी मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ तस्वीर पेश करता है। उनके मुताबिक इस शादी का बुनियादी मकसद ही इस जाहिलाना समाजी रिवायत को तोड़ना था कि मुंह बोला बेटा हकीकी बेटे जैसा होता है। यानी एक समाजी इस्लाह थी। एक समाजी इस्लाह थी जो सिर्फ पैगंबर ही कर सकते थे, और इसके लिए दलील कुरान से ही दी जाती है। सूरतुल अहज़ाब में अल्लाह ताला खुद इस वाक़े का जिक्र करते हुए फरमाते हैं कि पैगंबर अपने दिल में वो बात छुपा रहे थे जिसे अल्लाह जाहिर करना चाहता था, और वो लोगों से डर रहे थे जबकि डरना अल्लाह से चाहिए। ये तो बहुत दिलचस्प है। यानी अगर ये बात छुपाने वाली होती या ज़ाती ख्वाहिश पर मबनी होती तो कुरान खुद पैगंबर की इस अंदरूनी कश्मकश और हिचकिचाहट को इतनी तफसील से क्यों बयान करता? यही इस्लामी उलमा का मरकजी नुक्ता है। वो इसे शफाफियत की सबसे बड़ी दलील मानते हैं। अच्छा। वो कहते हैं कि पैगंबर ने एक बहुत बड़े समाजी तानो तशनी का सामना किया ताकि एक खुदाई हुक्म को नाफिज कर सकें। तो ये खुद गर्जी नहीं बल्कि खुद को कुर्बान करने की एक मिसाल थी। लेकिन एक गैर जानिबदार मुबस्सिर ये कह सकता है कि मकसद भले ही कानूनी इस्लाह हो, लेकिन इस इस्लाह का तरीक़ाकार यानी पैगंबर का खुद उसमें शामिल होना बाहर से देखने वालों के लिए हमेशा सवालात को जन्म देगा। ये बात भी दुरुस्त है। हमने उम्र और समाजी रिवायात की बात की, लेकिन एक तीसरा पहलू भी है जो आज के दौर में बहुत हसास समझा जाता है, और वो है रजामंदी का सवाल। खास तौर पर जंगी कैदी खवातीन से शादियों के मामले में। जी, यहाँ हजरत सफिया और हजरत जुवैरिया का मामला सामने आता है। और नाक़िदीन का मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह है। कैद की हालत में जहाँ ताकत का तवाज़ुन यकसर मुख्तलिफ हो, वहाँ हकीकी रजामंदी का सवाल ही पैदा नहीं होता। वो खास तौर पर हजरत सफिया की मिसाल देते हैं, जो एक सरदार की बेटी थीं और उनके वालिद और शौहर को जंग में कत्ल करने के फौरन बाद पैगंबर इस्लाम ने उनसे शादी कर ली।
नाक़िदीन इसे सदमे का इस्तेहसाल और ज़बरदस्ती का रिश्ता करार देते हैं। ये नुक्ता समझना आज के दौर में बहुत मुश्किल है। जब एक तरफ फातेह हो और दूसरी तरफ एक जंगी कैदी, तो इस रिश्ते को रजामंदी पर मबनी कैसे कहा जा सकता है? इसका रिवायती जवाब ये है कि ये शादियां उन खवातीन को गुलामी की जिल्लत से निकालकर इज्जत देने के लिए की गईं। उन्हें न सिर्फ आज़ादी दी गई बल्कि उम्मुल मोमिनीन यानी मोमिनों की माँ का दर्जा दिया गया। अच्छा, ये सिर्फ एक लक़ब नहीं, इसका मतलब था कि वो तमाम मुसलमानों के लिए एक मोहतरम माँ की हैसियत इख्तियार कर गईं, जिनसे निकाह हमेशा के लिए हराम हो गया और जिनकी इज्जत करना ईमान का हिस्सा बन गया। यानी उन्हें समाजी तहफ़्फ़ुज़ की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा दिया गया। बिल्कुल। और हजरत जुवैरिया के मामले में तो इस शादी के बहुत बड़े सियासी फवाइद भी हुए थे। हाँ, उनका पूरा कबीला आज़ाद हो गया था, है ना? जी बिल्कुल। उनकी शादी की वजह से उनका पूरा कबीला जो कैद था आज़ाद कर दिया गया। मुसलमानों ने कहा कि अब हम पैगंबर के ससुरालियों को कैद में नहीं रख सकते। तो एक शादी ने सैकड़ों लोगों को आज़ादी दिला दी। जी, लेकिन यहाँ पर असल में दो बिल्कुल मुख्तलिफ दुनियाओं का टकराव है। वो कैसे? एक दुनिया वो है जो कहती है मौजूदा बुराई को कम से कम कैसे किया जाए, और दूसरी दुनिया जो आज की दुनिया है वो कहती है इस बुराई को जड़ से कैसे उखाड़ा जाए। अच्छा, ये सिर्फ एक तारीखी वाक़या नहीं, ये इंसानियत की अखलाकी सोच के इर्तका की कहानी है। उस वक्त के मयार के मुताबिक एक कैदी औरत को बीवी बनाकर बुलंद तरीन समाजी दर्जा देना शायद बेहतरीन सलूक था, यानी बतदरीज इस्लाह। और आज की अखलाकियात जंगी कैदियों के तस्वुर को ही रद्द करती है, यानी मुकम्मल खात्मा। बिल्कुल। तो पैगंबर इस्लाम उस वक्त पहले कैंप में खड़े नजर आते हैं, जबकि उनके आज के नाक़िदीन दूसरे कैंप से आवाज लगा रहे हैं। ये वाकई एक मुश्किल मौजू है। एक तरफ तारीखी हक़ाइक़ है, दूसरी तरफ सदियों पर मुहित अक़ीदत, और तीसरी तरफ आज के अखलाकी पैमाने। उन तीनों को एक साथ लेकर चलना तकरीबन नामुमकिन लगता है। और ये हमें एक अमूमी सवाल की तरफ ले जाता है जो इन तमाम वाक़यात के पसे पर्दा मौजूद है, वही का किरदार। जी, नाक़िदीन कहते हैं कि कई कुरानी आयात बज़ाहिर पैगंबर के ज़ाती और घरेलू मसाइल को हल करती नजर आती हैं। जी, इसकी बहुत सी मिसालें दी जाती हैं, जैसे मेहमान ज़्यादा देर बैठ जाएं तो उनके जाने के आदाब पर आयत का उतरना, या बीवियों के दरमियान शहद पीने पर एक मामूली झगड़ा हो जाए तो उस पर पूरी सूरत तहरीम की इब्तदाई आयात का नाज़िल हो जाना। जी, तो एतराज़ ये है कि क्या इससे ये तासुर नहीं मिलता कि ये इल्हाम आफाकी रहनुमाई के बजाय ज़ाती मामलात को सुलझाने के लिए था? क्या ये कायनात का खुदा है जो बोल रहा है, या ये एक इंसान के घरेलू मसाइल का हल है? इस्लामी जवाब ये है कि दीन सिर्फ बड़ी बड़ी बातों का नाम नहीं है, वो जिंदगी के हर पहलू का अहाता करता है। अच्छा, और चूंकि पैगंबर की जिंदगी पूरी उम्मत के लिए नमूना थी, इसलिए उनके ज़ाती और घरेलू मसाइल के जरिए भी उम्मत को तालीम दी जा रही थी। वो मसाइल ज़ाती नहीं रहे बल्कि इज्तिमाई रहनुमाई का जरिया बन गए। और इसके दिफा में वो आयात भी तो पेश की जाती हैं जिनमें खुद पैगंबर पर तनकीद की गई है। बिल्कुल, और ये एक बहुत मजबूत दलील समझी जाती है, जैसे सूरत अबस, जिसमें एक नाबीना सहाबी को नजरअंदाज करने पर पैगंबर को सरजनिश की गई। तो दलील ये है कि अगर ये किताब खुद बनाई होती तो कोई शख्स उसमें ऐसी बातें क्यों शामिल करता जिससे उस पर हर्फ आता हो। जी, जहाँ तक घरेलू झगड़ों और बीवियों में हसद का ताल्लुक है, तो इस्लामी नुक्ते नज़र ये है कि अंबिया भी इंसान होते हैं, बेऐब रोबोट नहीं। उनकी जिंदगी में भी इंसानी जज्बात होते हैं। बिल्कुल, जबकि नाक़िदीन इसे पैगंबराना कमाल के तस्वुर के मुनाफी समझते हैं। तो इस सारी गुफ्तगू के बाद जब हम इन तमाम दलाइल, जवाबी दलाइल, तारीखी तनाजुर और जदीद अखलाकियात को देखते हैं तो हम कहाँ खड़े होते हैं? ऐसा लगता है कि हमारे पास मुतज़ाद तशरीहात का एक अंबार है और कोई वाज़ेह नतीजा नहीं। और शायद उसमें सबसे दिलचस्प बात यही है कि हतमी नतीजा अक्सर आपके पहले से तयशुदा मफरूज़े पर मुनहसर होता है। जो मवाद हमारे पास है वही सूरत हाल का एक बेहतरीन खुलासा पेश करता है, एक फ्रेमवर्क है जो समझाता है कि लोग एक ही हक़ाइक़ को देखकर बिल्कुल मुख्तलिफ नताइज पर क्यों पहुँचते हैं। अच्छा, वो फ्रेमवर्क क्या है? देखिए, ये दो बुनियादी सवालात पर मुनहसर है। पहला सवाल, क्या आप ये मानते हैं कि वही एक हकीकी माफ़ौकुल फितरत और खुदाई अमल है, या ये एक इंसानी अमल है जो उस वक्त के समाजी हालात से पैदा हुआ? और इस सवाल का जवाब आपके नतीजे का तयन करता है। बिल्कुल, अगर आप मानते हैं कि वही हकीकी है
تو آپ یہ نتیجہ اخذ کریں گے کہ یہ تمام اعمال چاہے وہ کتنے ہی غیر معمولی کیوں نہ لگے خدائی ہدایت کے تحت تھے اور ان میں کوئی گہری حکمت پوشیدہ تھی۔ لیکن اگر کوئی مانے کہ وہی ایک انسانی عمل ہے، تو پھر یہ تمام اعمال آپ کو 7ویں صدی کے عرب معاشرے کے اصولوں، روایات اور طاقت کے ڈھانچے کی عکاسی کرتے نظر آئیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ تو نقطہ آغاز کا فرق ہوا۔ دوسرا سوال کیا ہے؟ دوسرا سوال اخلاقیات کی نوعیت کے بارے میں ہے۔ کیا آپ اخلاقیات کو اضافی یعنی ریلیٹو سمجھتے ہیں؟ کہ ہر دور اور معاشرے کے اپنے اخلاقی معیار ہوتے ہیں اور ہمیں ماضی کو اسی کے معیار سے پرکھنا چاہیے؟ جی، یا پھر آپ اخلاقیات کو مطلق یعنی ایبسولوٹ مانتے ہیں کہ سچ، جھوٹ، انصاف اور ظلم آفاقی ہیں اور وقت کے ساتھ نہیں بدلتے؟ اور اگر کوئی اخلاقیات کو اضافی مانے تو یہ طرز عمل اس زمانے کے لحاظ سے قابل فہم ہو جائے گا۔ صحیح۔ لیکن اگر کوئی اسے مطلق مانے تو پھر یہ اعمال جدید معیار پر پورے نہیں اتریں گے اور مسئلہ دار نظر آئیں گے۔ بالکل۔ تو آپ کا نتیجہ ان دو سوالوں کے جوابات پر منحصر ہے، وحی کی نوعیت اور اخلاقیات کی نوعیت۔ یہی وجہ ہے کہ اس موضوع پر بحث کبھی ختم نہیں ہوتی۔ کبھی نہیں ہوتی، کیونکہ لوگ بحث میں داخل ہی مختلف دروازوں سے ہو رہے ہوتے ہیں۔ وہ صرف حقائق پر نہیں بلکہ اپنی پوری کائنات کے تصور پر بحث کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ فریم ورک واقعی اس پیچیدہ موضوع کو سمجھنے میں بہت مدد دیتا ہے۔ اس گفتگو کو ختم کرتے ہوئے ہم سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑنا چاہیں گے۔ ضرور۔ آج کے دور میں جب تاریخ کو جدید اخلاقیات کے پیمانوں پر پرکھا جاتا ہے تو ایک مذہبی روایت اپنے ماضی کی ان پیچیدہ تفصیلات سے کیسے نمٹ سکتی ہے؟ کیا صرف تاریخی سیاق و سباق کی دلیل دینا کافی ہے یا وقت کے ساتھ ساتھ ان واقعات کی تشریحات کو بھی بدلنے اور ارتقا پذیر ہونے کی ضرورت ہے؟